वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। साध संगत जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। धन नानक धन दर्शन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। रजोई निरातार हे दाता, पहली उपमा तेरी दाता, दूजी तेरी खुदाई, तीजी तेरी ओट आसरा, चौथी रेह नमाई, पंच करों सो तेरा मान, पंचम सांझ गाई। मैं नीच तेरे दास को दासा, धन नानक सब तेरी वड्याई। धन दर्शन सब तेरी वड्याई। नानक जोत निरंजन बन आई, प्रभ दर्शन अगम रूप कहाई। चरमंडा दास तिसकी शरनाई, तन मन धन सब भेंट चढ़ाई। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। बोलो हजूर महाराज दर्शन दास जी की जय। दास धर्म अमर रहे, सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। साध संगत जी, अज दे शब्द हजूर महाराज दर्शन दास जी दे हन, जिसनों जशवंती निराधार धाम पहला विच संग्रह किया गया। तेरा नाम हरि हरपूरा, दीजो दान साधु की धूड़ा। सतगुर मेरे गुरु नानक साईं, गुरु नारायण सतगुर दीन के दाता जियो। अपने भगतों को दीजे वड्याई, सच अटल निधान कमाई। सच साहिब संग होए सहाई, जन दर्शन की सुनो अरजोई। बिन नामे न मुक्त पावे कोई, बिन नामे न मुक्त पावे कोई यकीन। साध संगत जी, ये शब्द हजूर महाराज दर्शन दास जी दे हन। हजूर साहबान अपने सुंदर शब्दां दे राहीं सानू उस परम पिता परमात्मा दे हरि दे नाम दे बारे समझा रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा दा जो नाम है वही ही इस संसार दे अंदर, इस दुनिया दे अंदर पूरा है। बाकी जो कुछ भी सानू नज़र आ रहा है सब अधूरा है और झूठा है।
ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਜਿਓ ਦਾਨ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं है। बाहर बेस बनाया अंदर भरी बंगार। साधु के बारे कबीर साहब समझाते हैं, साधु सो भया जो माला पहरी चार, बाहरे बेस बनाया अंदर भरी बंगार। कहते कि बाहरला बेश तो बना लिया साधुआं वाला, संतां वाला, महात्मा वाला, महापुरुषों वाला, माला पहन लिया ਜਾਂ ਪਟਖੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਈਂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਬ ਭੈ ਹੈ ਦਿਆਲ ਤੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭੇ ਧਿਆਈਏ ਨਾਮ ਹਰੇ। होम में मार मलायन
गुरु के शब्द तरे, नानक सहज समायन, हर अपने किरपा करे। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, उन्नी देर तक वो मालक जिहड़ा है नारायण अकाल पुरख दयाल नहीं होंदा। कि सानू हर तरह अपने मुर्शिद दे हुक्म दे पाने दे विच रहना पवे। जिस तरह कि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने शब्दों के राहें सानू समझाया सी कि तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। कि सानू साडा मालक, साडा मुर्शिद किसी भी भाने में रखता है। वो दुखी दुख देता है, वो सुख देता है, वो हमें मान देता है, हमें नुकसान देता है, हमारा बुराई करवाता है दुनिया में, किसी भी रूप में, कैसे भी वो हमें संसार में रखता है। हमें अपने मुर्शिद के भाने में रहना पड़ेगा और उसके शब्द में लीन होना पड़ेगा, तब ही हम उसके भाने को मीठा समझकर ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि इस भाने में आने का मतलब है कि अपने आप को अपने मुर्शिद के प्रति सरेंडर कर देना। हम क्या करते हैं कि हमें कुछ मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं कुछ मिलता तो हम अपने मुर्शिद को मुर्शिद ही नहीं मानते। हमारा कभी ऐसी कोई चीज़ जिंदगी की जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो खो जाती है, चले जाती है, हमसे छूट जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तो हम अपने मुर्शिद को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसा भगत हुआ है जिसको कि हर चीज का ज्ञान होते हुए उसने अपने कभी भी मुर्शिद को कुछ भी सवाल नहीं किया और ना ही कभी उससे अपने आप के बारे में पूछा। लोगों ने कहा उसको कि तुम अपने गुरु से बात करो, वो कहता है नहीं। ये ऐसी कथा है, एक पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी के समय की ये कथा है। एक उनका हरमन प्यारा जीव था जो बहुत ही अपने मुर्शिद को प्रेम करता था, अपने गुरु को प्रेम करता था। और एक बार एक जीव महाराज जी के पास गया। महाराज जी ने जब ये शब्द कहा कि आप गुरु के भाने में रहें, अकाल पुरख के भाने में रहें, जो वो करता है वो हमारे लिए ठीक है। तो महाराज जी ने उसको कहा, तो वो कहने लगा, महाराज जी ये मैं कैसे मान लूं कि जो ईश्वर करता है वो ठीक है। मैं कैसे अपनी प्यारी चीज को खो दूं, इस जो मेरे मन के साथ जुड़ी हुई है, और जब वो मुझसे दूर होगी तो मुझे दुख तो होगा। महाराज जी ने कहा कि एक गांव है, वहां जाएं, वहां हमारा एक बहुत ही हरमन प्यारा भगत रहता है, हमारा एक बहुत प्यारा सिख है। आपको उससे पता चलेगा कि भाना किसको कहते हैं। जब वो उस गांव में गया तो एक महाराज का सेवक, पुराने ज़माने में आप जानते होंगे कि टाट बुना करते थे, जिसको बोरियां
कहते हैं हम, बोरियों को सील कर, सी कर, स्टिचिंग करके एक टाट बनाया जाता था। तो वो टाट बना रहा था, क्योंकि टाट पुराने जमाने में तब बनाते थे जब कभी कुछ ऐसा समय आता था तो कुछ लोगों ने इकट्ठे होने होता था, चाहे खुशी का समय हो चाहे गमी का समय हो। तो वो जीव ने उस सिख को पूछा, उस सेवक को पूछा कि ए भाई, तू गुरु का सिख है और तुझे टाट बना रहा है, क्या बात है? वो कहने लगा कि आज के 4 दिन बाद मेरे बेटे की मौत हो जानी है और लोगों ने अफसोस करने के लिए, दुख वंडाने के लिए आना है और उनको बैठने के लिए ये मैं टाट बना रहा हूं। तो वो जो महाराज ने सेवक भेजा था उसके पास, वो बड़ा हैरान हुआ कि जब आपको इतना ज्ञान है कि आज के 4 दिन बाद मेरे बेटे की मृत्यु हो जानी है, तो आप अपने गुरु से बात क्यों नहीं करते? वो कहने लगा कि मैं तो उसके हुक्म में हूं, मैं तो जो उसका भाना है वो वर्त रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, उसको मुझसे ज्यादा मालूम है। मैं अपने गुरु से क्या कहूं कि मेरे बेटे को जीवित कर दो? नहीं, कहता ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के हुक्म के अंदर रहना सीखा है और उसके भाने को मानना सीखा है। तो वो जो सेवक भेजा था, वो देखता हूँ क्या ये वाकई सच है, किसको इतना ज्ञान है कि इसकी बेटे की 4 दिन बाद मौत हो जाएगी? वो कहता है कैसे? कहता कि आज के 3 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। जब वो शादी करके वापस आएगा, वो अपने कमरे में जाएगा तो उसको सांप ने काट देना है और उसकी मृत्यु हो जानी है। उस सेवक को यकीन नहीं आया, वो कुछ दिनों के लिए वहां रुक गया। ऐसा ही हुआ। 3 दिन के बाद उसके लड़के की शादी हुई। शादी में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन उस सेवक ने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि आज के 4 दिन बाद मेरे बेटे की मृत्यु हो जानी है। वो नहीं चाहता था कि जो लोग खुशी में आए हैं उसको दुख सहन करना पड़े। और जहाँ लोग मुझे कहें कि अगर तुझको इतना ज्ञात है कि आप अपने गुरु से, मुर्शिद से बात करो, कहता कि मैं तो उसके भाने में रहने वाला हूं। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। 3 दिन के बाद जब उसकी शादी हुई, बारात आई, सब कुछ हुआ, घर में डोली आई, तो जब वो शाम को, रात को जाने लगा, सोने लगे, सोने के लिए जाने लगे, तो क्या देखते हैं कि एक नाग वहां आया और उसने उसको डस दिया और वो परमलोक को सुधार दिया। और वो सेवक हैरान था कि इसको इतना ज्ञान होते हुए भी उसने अपने मन को नहीं डोला। तो वही महाराज समझा रहे हैं कि जो जीव उस गुरु के भाने में रहता है, उसके ऊपर वो कोई भी शिकवा नहीं करता। वो ईश्वर के ऊपर या अपने मुर्शिद के ऊपर, गुरु के ऊपर उसको कोई गिला शिकवा नहीं होता। हमारे ऊपर थोड़ी सी दुख तकलीफ आ जाए तो हम अपना आप से बाहर हो जाते हैं। हम अपने मुर्शिद को मुर्शिद ही नहीं मानते। आप कहते आप काहे के गुरु हो, आपने मेरे बेटे की रक्षा नहीं की। अब आपको मालूम था
कल ही 2 दिन पहले हमें किसी का फोन आया जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। उसके काफी दिनों से उसका फोन नहीं आया था, तो उसने हमें कहा कि बाबा जी, आपको मालूम था कि ये कुछ होना है, तो आपने बताया क्यों नहीं? इसलिए मैं आपसे नाराज हूं। मैंने बोला, भाई आपको बताने का फायदा क्या? अगर आप बता भी देते तो क्या होता? कुछ होने वाला तो नहीं था। तो अगर उसको इतनी शंका हो गई कि हमारे ऊपर कि हमने उसको बताया नहीं और वो हमसे रुष्ट होकर बैठ गया। चलो, वो हमने उसको समझा दिया जैसे भी था। कहने का मतलब, छोटी छोटी बातों पे अगर हमारी कोई बात पूरी नहीं होती, हम अपने मुर्शिद से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण संत है, जो उसके भगत होते हैं, जो उसके जीव होते हैं, उसके दास होते हैं, और जो दास भी पूर्ण है, वो ही उसके ऊपर विश्वास करता है। बाकी जीव में दास तो कोई है ही नहीं इस संसार में। सब अपनी गर्जों के साथ, अपनी जरूरतों के साथ संतों महात्माओं के साथ जुड़ते हैं। हमारी गर्ज पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं पूरी हुई तो नहीं। अगर वो सेवक की बात करें जो टाट बना रहा था, उसको सब कुछ ज्ञात होते हुए भी उसको मालूम है कि मेरे बेटे की मृत्यु होने वाली है, तो भी वो खुश था उसके बहाने में। तभी ये शब्द महाराज ने कहा कि तेरा बहाना मीठा लगे। जो उसके बहाने में आ जाता है उसको कोई दुख सुख नहीं सताता। और जब हम पूर्ण गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? गुरु नारायण सतगुरु दीन के दाता जी। फिर हमें वो गुरु जो नारायण है, सतगुरु जो दीन के दाते हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं और वो अपने भक्तों को वड्याई भी दे देते हैं। महाराज कहते हैं कि अपने भक्तों को दीजिए वड्याई, सच अटल निधान कमाई। जो सच्चे जीव हैं, जो सच्चे भगत हैं, जो अपने मुर्शिद के साथ जुड़ जाते हैं, उसको वो गुरु नारायण के रूप में आकर उसको इस संसार में वड्याई बख्श देते हैं। यहां के लिए संसार की नहीं, उसको वैकुंठ में भी उसकी वड्याई चल जाती है, उसको वैकुंठ में भी वड्याई मिल जाती है। इया और उमा दोनों तरफ उसको वड्याई मिलती है। तभी तो कहा कहते हैं ना, साध का वचन व्यर्था ना जाए। संता का कहा सहज सभाए व्यर्था ना जाए। क्योंकि जो अपने पूर्ण मुर्शिद के साथ जुड़ जाता है, जैसे गुरु महाराज दर्शन दास जी ने जिनको भी उन्होंने अपनी शक्ति बख्शी, अपनी ड्यूटियां बख्शियां, जो आज लोग भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो सब की ही उस गुरु घर में वैकुंठ में चलती है। जो कोई इस संसार में नहीं कर सकता, तो गुरु अपने मुर्शिद को, नारायण को कहता है और उससे वो चीज लेकर उसको प्राप्त करवा देता है। गुरु तो नारायण थे ही थे, लेकिन अपने भक्तों को भी, अपने दासों को भी उस घर में प्रवान करवा दिया। तो कब होगा? जब हम गुरु की सेवा में रहेंगे और उसकी नजर हम पर पड़ेगी। जैसे पहले शब्द में बयान कर रहे थे, गुरु सेवा ते हर पाया जाको नजर पड़े, जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ जाती है। मानस ते देवते भय ध्याये ना मरे। जिसने गुरु की सेवा में रहकर उस ईश्वर के नाम के शब्द का ध्यान किया, तो उसको वो मनुष्य से देवता बना देते हैं। और महाराज जी ने भी अपने शब्दों में कहा है, अपनी वाणी में कहा है, जो दास धर्म में आएंगे वो देव कहलाएंगे। अगर शब्दों को विचारें, शब्दों को समझें,
कि महाराज ने जो अपनी वाणी में लिखा है, अपने शब्दों में कहा है, तो वो तो अटल है कि जो जो जीव इस दास धर्म में आकर समाएंगे, नाम स्मरण करेंगे, नाम का ध्यान करेंगे, लोक भलाई करेंगे, उसको देव बना दिया जाएगा, उसको देवता के सम्मान मिलेगा। तो महाराज जी ने भी यही कहा है, मानुस्ते देवते बे ध्याये नाम हरे। कब? जब होम में मार मिलायन, जब हमारे अंदर से होम में निकल जाएगी और सहज अवस्था आ जाए। नानक सहज समायन, हर अपनी कृपा करे। जब हमारे अंदर सहज अवस्था आ जाएगी, उस नाम के साथ जुड़ जाएंगे, गुरु की सेवा में लीन हो जाएंगे, महाराज जी, दर्शन दास जी हमें दासों को देव बना देंगे। कब? जब हम सहज में होंगे, उसके नाम के साथ जुड़ेंगे और हमें वड्याई बख्श देंगे। साहेब सेवक रहे शरणाई, आपे बख्श दे वड्याई। तुम्हारे ने अपने शब्दों में कहा। कुमार ने आज के शब्दों में यही कहा कि अपने भक्तों को दीजिए वड्याई, सच अटल निधान कमाई, सच साहेब संग होए सहाय। अगर हम महाराज जी के शब्दों को विचार नहीं करते, महाराज के शब्दों को समझते नहीं है, तो फिर हमें कैसे सुख प्राप्त होगा, कैसे आनंद प्राप्त होगा। महाराज जी कहते हैं कि सच साहिब संग होए सहाय, कि हम सच्चे हृदय से अपने पूर्ण मुर्शिद के साथ, जो हमेशा अटल और सच है, गुरु हमेशा सच होता है, हम उसके साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमें इस संसार में वड्याई प्राप्त नहीं होती। क्योंकि उसकी शरण में रहेंगे तो वड्याई होगी ना। जैसे कि आज भी है और पहले भी था, जो बच्चा अपने पिता के साथ जुड़ा रहता है, अगर उसके पिता की इस समाज में मान है, इज्जत है, वड्याई है, तो पिता के नाम से ही बच्चे को भी वड्याई मिलती है। जब हम समाज में जाते हैं, कहीं गुजरते हैं, तो कभी कभी ये कहते थे फलाने का बेटा जा रहा है, चाहे काम बेटे ने ही किया है, लेकिन नाम किसका बचता है? पिता का, कि फलाने का पुत्र जा रहा है, और पुत्र को ही पिता के नाम से वड्याई मिलती है। ऐसे ही जो सेवक अपने मुर्शिद के साथ जुड़ जाते हैं, अपने मुर्शिद के असूलों पे तुर पड़ते हैं, तो उनको भी दाता जो है वो इस संसार में वड्याई बख्श देता है। अगर हम नाम के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, अपने दाता के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, तो हमें वड्याई कहां से मिलेगी? ये संसार तो सब उसका है। कार्य संवारने वाला भी वो ही है, करने वाला भी दाता ही है। दर्शन राम तेरे काज सवारे। महाराज ने अपने शब्दों में कहा है कि दर्शन राम जो है, राम रूपी दर्शन जो है, को राम ही दर्शन थे और दर्शन ही राम थे। कार्य सब उन्होंने सवारने हैं। जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, सच्चे के साथ जुड़ जाएंगे, सच कमाई करेंगे। सच्ची कमाई क्या है? वो नाम की ही है। नाम के सिवाय और कोई सच्ची कमाई है ही नहीं। बाकी तो सब झूठी है, वो उपजती है, आती है, चले जाती है। कबीर साहब भी यही समझाते हैं, कोई इसमें कोई संसार में कोई थिर नहीं है। कहते थिर सोई जो सच रहाई, उपजे बिन से सब झूठ हो जाए। कबीर साहब कहते सच वो है जो परमानेंट रहता है, हमेशा रहता है। सच सोई जो थिर रहा है। थिर मतलब कि परमानेंट।
जो हमेशा रहता है, सच सो थिर रहे, उपजे बिन से सब झूठ है। जो उपजदा है, जो बनता है, वो सब विनष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। जो संसार में नजर आ रहा है, इसका सबका विनाश है, क्योंकि वो संसार से उपजा है, यहीं से उपजा है, यहीं से मिला है, वो यहीं समा जाएगा। तो सच है वो एक नाम, तभी उसको कहा जाता है कि सच्चे नाम की तिल वड्याई, आंख कहे कीमत नहीं पाए। उस सच्चे नाम की थोड़ी सी भी कमाई करने से, थोड़ा सा भी जप करने से, उसकी हम कीमत नहीं पा सकते। वो हमको वड्याई मिल देता है। जो थोड़ा सा भी मंदिर जाता है, थोड़ा सा भी सुबह उठ के जाप करता है, सिमरन करता है, ध्यान करता है, थोड़ी सी लोक भलाई करता है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये एक नेक इंसान है। इंसान तो वही है, लेकिन जो उसने कर्म किए, नेक कर्म किया, जो किसी का भला किया, नाम स्मरण किया, उससे उसको वड्याई मिली। तो वड्याई किसकी हुई? नाम की। इसलिए नाम की कीमत जो है उसको हम ख्याल नहीं कर सकते। तभी कहा सच्चे नाम की तिल, थोड़ी सी, थोड़ा सा जपने से उसकी हम वैल्यू नहीं पा सकते। लेकिन उसके लिए भी महाराज कहते हैं कि कोई ऐसा हमें जौहरी मिलना चाहिए। कबीर साहब इसके बारे में समझाते हैं, कोई ऐसा हमें कोई जौहरी मिलना चाहिए जो शब्द की खोज करता है। कोई बूझिए जन जौहरी, जो शब्द की परख करे। चित्त लाए सुनिए सुनामने, हित जानकर हृदय तरे। हुन कबीर साहब कितने सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं कि कोई बूझिए जन जौहरी, कोई ऐसा कोई जीव मिल जाए, ऐसा कोई जन मिल जाए जिसके पास नाम रूपी खजाना हो। फिर उस नाम को, उस शब्द को उससे प्राप्त करना है, उस शब्द की खोज करनी है, शब्द की तलाश करनी है। शब्द को इसलिए हम बार बार दोहराते हैं ताकि हमें उस शब्द का ज्ञान पता चल जाए, उस शब्द की व्याख्या जो है, वो शब्द किस लिए है, वो हमें समझ में आ जाए। जब तक हम एक ही बार उसको बोल दिया और सुना दिए पढ़कर, तो समझे नहीं पड़ा हमें, तो क्या फायदा उस शब्द का। दूसरी तरफ कबीर साहब ये भी समझाते हैं कि कहे कबीरा तू शब्द की पारख ले, शब्द ही है करतार पर। कबीर साहब ये कहते हैं कि ऐ जीव, तू शब्द को परख ले अच्छी तरह से, उसको जान ले, क्योंकि शब्द ही वो परमात्मा है, शब्द ही नारायण है, शब्द ही गुरु है। जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, शब्द को नहीं विचारते, तो हमें उस गुरु के शब्द का भी ज्ञान नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कबीर साहब, कबीरा राम एक है, कोई ना सके पहचान। हुन अगर हम तीनों शब्दों को विचारें, पहला शब्द ये था कबीरा, कोई बूझिए जन जौहरी। ऐ कबीर, किसी ऐसे जीव को ढूंढ जिसके पास अनमोल खजाना है, कोई जोहरात है, अनमोल है, जिसको शब्द का ज्ञान है, जो शब्द में समाया हुआ है। शब्द की पारख ले। फिर की महाराज से समझाते हैं, हित जानकर हृदय धरे। चित्त लाए सुनिए सुनावने, हित जानकर हृदय धरे। चेतना के साथ, चित्त के साथ उसको सुनना है। अपने लिए सुनना है, किसी के लिए नहीं।
और अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए उसको किसी हृदय में धारना है। जब हमें गुरु से गुरु शब्द मिल जाता है, उस गुरु को और गुरु के शब्द को अपनी ही भलाई के लिए हमें अपने इस हृदय के अंदर समाना है, सुनना है उसको अंदर से। जब हमें उस शब्द की परख हो जाएगी, शब्द का ज्ञान हो जाएगा, फिर कबीर साहब का दूसरा जो शब्द है वो पूरा होता है। क्या? कबीरा शब्द की पारख ले, शब्द ही है करतार भाई। जब हम शब्द को परख लेंगे, शब्द का ज्ञान हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि गुरु में और शब्द में कोई भेद नहीं है, गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। वो तीसरी बात पूरी होती, कबीरा राम एक है, कोई ना सके पहचान। उसको कोई पहचान नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे जैसा ही होता है। जो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे गुरु थे महाराज, हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे ही उनकी आंखें थी, हमारे जैसे ही पांव, तो बाहर का शरीर हमारे जैसा ही था, लेकिन जो अंदर की उनकी अवस्था थी वो हमसे अलग थी। बस हम अपने आप को भीतर से नहीं देखते, हम दूसरे को भीतर से नहीं देखते, हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। हमको भीतर जाना पड़ेगा उस ईश्वर को पाने के लिए, अपने गुरु को पाने के लिए हमको इस शरीर के अंदर जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा? जब हम अपने इस शरीर की जान पहचान कर लेंगे, इस शरीर को जान लेंगे। क्योंकि इस शरीर तो काम और क्रोध के साथ भरा पड़ा है, उसको निकालने के लिए साधु का संग चाहिए। काम क्रोध नगर वो भरया, मिल साधु संगत खंडाए। पूर्व लिखित गुर पाया, मन हरले मंडल मंडा। उस शब्द की, उस गुरु को पहचानने के लिए, जब तक हमारे अंदर से काम क्रोध जो भरा पड़ा इसके अंदर, किसी अग्नि जल रही है, तो महाराज ने यही तो बाणी में समझाया है। अरदास के बाद हम नॉर्मली गुरुद्वारे में यही शब्द बोला जाता है, काम क्रोध नगर वो भरया। कौन से नगर की बात करते हैं? वो ये संसार की बात करते हैं या हमारे मोहल्लों की बात करते हैं? नहीं, ये शरीर रूपी जो नगर है, इस नगर के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि उसके अंदर तो काम क्रोध लोभ अहंकार बड़ा पड़ा है। कहते उसको निकालने के लिए मिल साधु मंगल खंडा। जब तक हमें साधु नहीं कोई मिलता, कहते ये पूर्व लिखों की बात है, पूर्व संस्कारों के कर्म हैं जिनको पूर्व लिखा जाता है। पहले कर्मों में जिन्होंने कोई सेवा की है, कोई सिमरन किया है, कोई ईश्वर का ध्यान किया है, तो जाके उसको जब मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद उसको किसी गुरु का संग मिला। इसलिए महाराज ने बानी में क्या, पूर्व लिखित गुरु पाया, मन हर लिव मंडल मंडाए। जिनको पूर्व के संस्कारों के हिसाब से को गुरु पुरुष मिल गया, पूर्ण पुरख मिल गया, उनका मन जो था उसके साथ जुड़कर मंगलमय हो गया, खुश हो गया। कि जब हम गुरु के पास जाते हैं, हमारे अंदर एक खुशी से महसूस होती है, हमें गुरु के साथ मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे उनके साथ पूर्व जन्मों का नाता है, आज का नहीं है। कहते जो इसके साथ जुड़ा नहीं है उसको उसका संग का प्राप्त नहीं होगा। कहते साकत हर रस साध ना जाने, तेन अंतर हो मैं कंटा है। कहते साकत हर रस साध ना जाने, कहते जो इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, 5 चोरों के साथ जुड़ा हुआ है, काम क्रोध वगैरह जुड़ा हुआ है, उसको उस हरि के रस का आनंद नहीं प्राप्त होगा। वो साधु को नहीं जान सकता। क्यों? कि उनके अंदर तो जो हौम्य है,
मैं मेरी का चल रहा है तो वो तो उसके अंदर चल रहा है। जब तक हमारे अंदर मैं मेरी चल रही है, मैं चल रही है, तो हम उस हरि के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हरि का रस प्राप्त नहीं हो सकता। हम नाम के साथ आनंद नहीं ले सकते। कि जब भी हम नाम पे बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारा मन जो है वो बाहर ही भटकता रहेगा। कि इसको ही जानना है, इसको ही समझना। फिर कहते ज्यों ज्यों चले त्यों त्यों चुभे, जमकाल से ही सिर डंडाए। कि जब हम इस होमे के साथ चलते हैं और वो होमे हमें क्या मिलती है, कभी कभी दुख देती है। हमें ये नहीं ज्ञान रहता कि हमारे सिर पर जम का डंडा भी है, कि हमारी मौत भी आगे खड़ी है। भाव ये है कि जब तक हम अपने आप को अंदर से उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम विकारों से छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक हम अंदर से उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो कैसे हमें पता चलेगी? हम उसको बाहर से ढूंढते हैं और बाहर से जुड़ते हैं। हम बाहर से ही जुड़ना चाहते हैं। और महाराज दर्शन दास जी ने कितनी बार कहा है हमें सत्संगों में, और आप सबने सुना होगा, कि जिस जीव को हमने नाम दे दिया है उसको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कहते कि आप नाम ही इतना जपो, नाम के साथ इतना जुड़ जाओ ताकि हमें तुम्हारे पास आना पड़े, आपको हमारे पास नहीं। अगर आप विचार करें, जिन जिन भक्तों ने इस संसार में आकर उस हरि का नाम जपा, उस हरि का ध्यान किया, हरि का सिमरन किया, क्या भगत चलकर हरि के पास गए और या हरि चलकर भगत के पास आ गए? आप विचार करके देखिए। इसलिए महाराज जी ने कहा था हमें कि हम सिमरन ही इतना करें कि मुझको आपके पास चलकर आना पड़े। जैसे भगत प्रहलाद ने नाम जपा, तो भगत प्रहलाद तो नारायण के पास नहीं गए। भगत प्रहलाद ने नरसिंह अवतार को तो नहीं धरती पे बुलाया। जब उन्होंने पुकार की नाम से उस प्रभु को, तो उसको धरती पे आना पड़ा। इसलिए क्या सुनी पुकार दत्तार प्रभु गुरु नानक जग में पठाया। शब्दों को जब तक हम नहीं समझेंगे, अपने मन के अंदर नहीं लेके जाएंगे, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है और ज्ञान ही हमारे सुखों का कारण है। अगर हमारे अंदर से ज्ञान जागृति हो जाएगा तो हमें सुख प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम अज्ञान के साथ जुड़ जाएंगे तो दुख प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि गुरु का ज्ञान जो है उसको सुरमे की तरह अपनी आंखों में डालना चाहिए। जैसे दुखती आंखें ठीक हो जाती थी सुरमा डालने से। पुराने जमाने में जिनकी आंखें खराब होती थी उनकी आंखों में सुरमा डाला जाता था, काजल जिसको कहते हैं, जिससे आंखें ठीक हो जाती। कहते इसी प्रकार महाराज ने बाणी में भी यही समझाया है, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। इस सुखमनी साहब में महाराज ने समझाया है हमें कि गुरु के ज्ञान जो है, गुरु का प्रकाश है, शब्द का प्रकाश है, उसको सुरमे की तरह अपने इस अंदर डाल लीजिए। फिर क्या होगा? अंदर जो है अज्ञान का अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा। अज्ञान जो हमारे अंदर बड़ा है, अंधेर है हमारे अंदर। क्यों अंधेरा? तभी है हमारे अंदर अज्ञान है। जहां ज्ञान होगा वहां प्रकाश होगा, क्यों प्रकाश से ही हमें
चीज नजर आ सकती है। ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं, अज्ञान से नहीं। जब हमारे अंदर हौम्य रूपी अज्ञानता है तो सच रूपी प्रकाश कहां से देखेंगे? हौम्य रूपी झूठ हमारे अंदर भरा पड़ा है तो सच शब्द की कैसे परख करेंगे? तो इसी को ही महाराज ने समझाया है कि जब हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, हम जमों से बचना है, दुखों से बचना है, वो तभी हम समझे जब हम उस हरि के नाम के साथ जुड़ जाएंगे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडा है। कि जो जीव उस हरि के नाम के साथ जुड़ जाता है उसके दुखों का जो नाश हो जाता है। और महाराज जी भी यही समझा रहे हैं कि जन दर्शन की सुन अर्जोई, बिन नामे ना मुक्त पावे कोई। महाराज ने आखिर में यही कहा कि जो जीव महाराज दर्शन दास की अर्जोई के साथ जुड़ता है, जन दर्शन की सुनो अर्जोई, बिन नाम में ना मुक्त पावे कोई। महाराज कहते हैं कि नाम के बिना किसी जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हम इस विकारों से ऊपर नहीं उठते। और महाराज जी कहा कि मैं अर्जोई करता हूं, मेरी अर्जोई उस परमात्मा के अंदर घर में सुनाई देती है। जन दर्शन सुनो अर्जोई। अगर हम अपने महाराज दर्शन दास जी के सामने अर्जोई करेंगे, अर्ज करेंगे, उस अर्जोई को भी समझना पड़ेगा। हम अर्जोई को भी समझते नहीं। जब हम अपनी जो अर्जोई हमें महाराज ने दी है उस अर्जोई को पढ़ेंगे, ध्याएंगे, उससे पुकार करेंगे तो जाके हमें पता चलता है। इसलिए महाराज ने अपने शब्द में कहा कि जो अर्जोई है वो उसके घर में है। उस अर्जोई को उसकी अर्ज करनी है उसके घर में, और वो नाम के साथ होगी। नाम होगा तो अर्ज होगी। अगर नाम ही नहीं है तो अर्ज कैसे होगी? अगर हमने किसी को बुलाना होगा, कोई नाम उसका होगा तो बुलाएंगे ना। अगर नाम ही नहीं है तो बुलाएंगे कैसे? नाम के बिना कैसे उसको पुकारेंगे? ऐसे ही जो हमें हमारा दर्शन दास जी ने नाम दिया है, उस नाम के साथ हमने उसको पुकारना है। वो तो हमारे सहाय है ही है। वो अंतर्जामी, वो सब कुछ जानते हैं। वो ओम रूप है। ओम ही तो है सारा कुछ। ओम का तो पसारा है ऐसा। उसके हम ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम उस शब्द को ध्यान करेंगे, तो उस ओमकार को समझेंगे तो कि ये वाक्य ही उस ओम का आकार है, ये शब्द का आकार है। जब तक हम वो नहीं जानते तब तक हमें समझ उसका तभी पता चलेगा जब हमारे अंदर जात पात घृणा खत्म हो जाएगी। जैसे हरि की क्या जात है, नारायण की क्या जात है, गुरु की क्या जात है? कोई कह सकता है कि गुरु की कोई जात पात है? कोई कह सकता है कि हरि की कोई जात पात है? जब उनकी जात पात नहीं है तो हमारी जात बरादरी बात कहां से आ गई? एक तरफ हम कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारी ये जाति है, हम इस जात से बिलोंग करते हैं। कभी किसी ने ये कहा कि हरि उस वंश में था, नारायण उस वंश का था? कोई नहीं कहता। वो कहते हैं कि वो नारायण थे, वो काल पुरुष थे, वो भगवान थे, वो ईश्वर थे, वो गुरु थे। इसमें कबीर साहब ने समय जात नहीं जगदीश की, हरजन की क्या हुई? जात पात के बीच में डूब मरो मत कोई।
कि इस जात पात के कीचड़ में मत पड़ो। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब हमारे आने का तरीका एक है, जाने का तरीका एक है, तो छोटा बड़ा कहां से हो गया? कोई है ही नहीं। उसने हमें एक मनुष्य बनाया है, मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य बनाया है, उसने छोटा बड़ा नहीं बनाया। बाकी जो अमीर गरीब सब है वो अपने कर्मों के हिसाब से है। जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे हमें जन्म मिल गया, वैसे हम इस धरती पे। वो कर्मों के खेड है, लेकिन मनुष्य की कोई जात नहीं है। तो इसलिए हमारे समझा रहे हैं कि उस प्रभु का नाम जो है वो ही पूर्ण है। तेरा नाम हर हर पूरा दी जो दान साधु की धूरा। साधु की संगत में, साधु संगत में बैठकर ही जाकर हमें उस हरि के पूर्ण नाम का पता चलता है। उस हरि के नाम के साथ हम जुड़ सकते हैं। जब तक हमारे अंदर वो नाम का प्रकाश नहीं जागृत होता, तब तक हम उस नाम के साथ नहीं जुड़ सकते, उस हरि की पहचान नहीं कर सकते। सो यही ही आज का संदेश है हमारे जी का। इसी को हमने विचारना है, इसके साथ जुड़ना है कि उस हरि के पूरे नाम के साथ जुड़ना है। बिन नाम ये शरीर अधूरा है, और नाम के बिना हमें इस वासनाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। नाम के साथ ही हमें इस वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। वो तब होगा जब अपने गुरु के, मुर्शिद के नाम के साथ जुड़ेंगे। जब तक नाम के साथ नहीं जुड़ते तब तक नहीं होगा। सो यही आज का संदेश है हमारा जी का। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत कला। साध संगत जी